بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب آپ اپنی زندگی کی ہر تفصیل اپنے دوستوں کو بتانا بند کر دیتے ہیں تو آپ کے دشمن معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ رونے سے پلکیں بڑھنے میں مدد ملتی ہے؟ جب آپ اپنے پسندیدہ شخص سے بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز لاشعوری طور پر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ پیٹ کے بل سونا پسند کرتے ہیں تو جان لیں کہ آپ اداسی کا شکار ہیں۔ ناظرین، آئس کریم آپ کو ٹھنڈا نہیں کرتی بلکہ یہ تو آپ کو گرم کرتی ہے، کیونکہ آئس کریم کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سچ بولے تو پہلے اس کی تعریف کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں تو جمائی لے، وہ بھی جمائی لے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سے اتفاق کرے تو بات کرتے وقت اسبات میں سر ہلائیں۔ ناظرین، تنہائی میں خود سے باتیں کرنا ذہنی دباؤ کم کرتا ہے اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں وہ ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ 5 حالات میں اپنے دل پر قابو رکھو۔ نمبر 1، جب کسی محفل میں تمہاری تعریف ہو رہی ہو۔ نمبر 2، جب کوئی فرد تم سے محبت کا اظہار کرنا چاہے۔ نمبر 3، جب اچانک دولت اور عزت آنا شروع ہو جائے۔ نمبر 4، جب کوئی بھری محفل میں تمہارے خلاف کوئی بات کرے۔ نمبر 5، تمہارا دشمن جب تم سے میٹھے لہجے میں بات کرنے لگ جائے۔ ناظرین، جب آپ کسی شخص کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو وہ شخص بھی آپ کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ رات کو جلدی نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے، جس کو آن ایکٹیو ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لو، کئی سالوں تک گلا نہیں بیٹھے گا۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ رونا دل کو مطمئن کرتا ہے اور غم کو ہلکا کرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی میں اگر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جن باغوں کے مالی نہیں ہوتے وہ جلد ہی اجڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، محققین کے مطابق سمندر کے نیچے تقریباً 20 ملین ٹن سونا موجود ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی کو اپنے دماغ سے نکالنے میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاتھ ایک دن میں درجن بھر چیزوں کو چھوتے ہیں اور 10 لاکھ جراثیم کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں۔ بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ اپنے جوتے کو کثرت سے دھوئیں، اس سے ان میں فنگل اور بیکٹیریا کے بڑھنے کے امکانات کم ہو جائیں گے جو آپ کی جلد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، سلاد کھانا صحت بخش ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب پھلوں اور سبزیوں کو اچھی طرح سے دھویا جائے۔ بصورت دیگر یہ پیٹ میں انفیکشن اور فوڈ پوائزنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کان بند ہو جائے تو الٹے پاؤں چلنے سے کان کھل جائے گا۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ میڈیکل سائنسی ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد اگر شادی نہیں ہوتی تو لڑکوں اور لڑکیوں میں چڑچڑا پن، ڈپریشن، سٹریس، نیند کی کمی، بلڈ پریشر اور چہرے پر دانے جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض مصنوعی ڈالڈا گھی کبھی بھی استعمال نہ کریں بلکہ خالص تیل کا استعمال کریں۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو اجوا کھجور کا استعمال کروایا کریں۔ بکری کے دودھ میں پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ پینے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ زیادہ گرم چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی میں اسبغول کا چھلکا شامل کر کے کھایا کریں۔ ناظرین، چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آئیں گے اور چہرہ صاف رہے گا۔ ناظرین، مردوں یا عورتوں کی شرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو سونف کے پتوں کا پانی
हल्दी में शामिल करके शर्मगाह पर लगा लें, दाने जल्दी खत्म हो जाएंगे। निहार में नीम गर्म पानी पीने से मैदा हमेशा साफ रहता है और दांत मजबूत हो जाते हैं। खाने में सब्ज कच्ची मिर्च खाने से बिनाई तेज हो जाती है। अगर पेट में दर्द हो तो लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नाजरीन, आप अपने पौधों के गमले में चुटकी चीनी की डालकर उनकी ज़िंदगी तवील कर सकते हैं। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 17 करोड़ टन टमाटर खाया जाता है, जो इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल बनाता है। टमाटर दरअसल एक फल है। रात के वक्त बादाम खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है। इससे आपके दिमाग की जहानत में इजाफा होता है। क्या आप जानते हैं कि ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है? अगर मैदा कमज़ोरी का शिकार हो जाए तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर खा लें। इंशाल्लाह चंद दिन में इस्तेमाल करने से मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। वो पत्ता जो ज़वाल में नहीं गिरता, वो अपनी बरादरी की नज़र में गद्दार, दरख्त की नज़र में वफादार और मौसमों की नज़र में बागी होता है। लिहाजा ये बात याद रखें कि चाहे आप कुछ भी करें, आप तमाम लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। अच्छे ताल्लुकात की खुशी पर असरात, इंसान अकेला खुश नहीं रह सकता। हम सबको ऐसे रिश्ते, ताल्लुकात और साथ चाहिए जो हमें सहारा दें, संभालें और खुशी दें। नाज़रीन, तिब्बी तहकीक बताती है कि जो लोग मजबूत और अच्छे ताल्लुकात रखते हैं वो ज़्यादा खुश, सेहतमंद और लंबी उम्र पाते हैं। साइकोलॉजी भी कहती है कि ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान का सबसे बड़ा राज पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छे ताल्लुकात के फ़वाइद: ज़हनी सुकून मिलता है, दिल का बोझ हल्का होता है, जब कोई सुनने वाला हो हौसला मिलता है। मुश्किल वक़्त में एक दोस्त या ख़ानदान के साथ हों तो मुश्किलात आदी रह जाती हैं। नाज़रीन, क्या कभी आपने महसूस किया है कि दिमाग में सब कुछ बहुत अच्छा सोचा होता है, लेकिन जैसे ही बोलने का वक़्त आता है अल्फाज साथ नहीं देते? ये उस वक़्त होता है जब ख़यालात को ज़ुबान पर लाने की प्रैक्टिस कम हो। अल्फाज में सोचों को ढालना भी एक हुनर है, और हर हुनर की तरह ये भी प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता है। रोज़ाना आईने के सामने अपने ख़यालात बोलने की आदत डालें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें और कभी कभी अपने ख़यालात को लिख कर भी देखें। वक़्त के साथ आपकी ज़ुबान और ज़हन एक दूसरे से हम आहंग हो जाएंगे। नाज़रीन, बात करने के लिए खूबसूरत अल्फाज के साथ सच्ची नीयत और साफ दिल की ज़रूरत है। जब दिल की बात निकलती है तो वो सीधी दूसरे दिल तक पहुंचती है। ज़हनी दबाव और डिप्रेशन कम करने के 7 बेहतरीन आजमूदा तरीके। नंबर 1, फजर की नमाज पढ़कर कुरान मजीद की तिलावत करें। नाश्ते से पहले सुबह की रोशनी में वक़्त गुजारें। सुबह की पहली किरण में 15 से 20 मिनट वॉक करें। नंबर 2, रोज़ाना वर्जिश की आदत अपनाएं। नंबर 3, रोज़ाना एक ही वक़्त में सोने, जागने और खाने की आदत बनाएं। नंबर 4, गहरी सांस की मश्क, यानी गहरी सांस लें, फिर 4 सेकंड के लिए रोक कर रखें, फिर आहिस्ता से छोड़ दें। तकरीबन 10 सेकंड लगेंगे। रोज़ाना 3 से 4 दफ़ा 5 मिनट के लिए यह मशक ज़रूर करें, इससे ज़हनी दबाव कम होता है। नंबर 5, रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 3 नेमतें याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करें और शुक्रगुजारी की आदत बनाएं। यह आदत दिमाग को मस्बत सोच की तरफ बुलाती है। नंबर 6, मुतवाज़न ग़ज़ा, यानी फल, सब्जियां और गोश्त खाएं। बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, घर का बना हुआ सेहतमंद खाना खाएं। नंबर 7, दोस्तों अपनों से जुड़े रहें, यानी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर सोशल गैदरिंग करें। किसी के घर जाएं, दोस्तों से मिलें, दावत घर पर रखें या किसी के यहाँ दावत पर जाएं। दोस्तों या घर वालों के साथ घूमने फिरने जाएं। नाज़रीन, ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि जब आप नहाने के बाद देखते हैं कि उंगलियां या पाँव की उंगलियां सिकुड़कर झुर्रियों वाले हो जाते हैं, तो ये कोई नुक्स या पानी से नुकसान नहीं, बल्कि असल में ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास निज़ाम है कि जब हाथ या पाँव काफ़ी देर तक पानी में रहते हैं तो आपका एसाबी निज़ाम एक ऑटो रिएक्शन शुरू कर देता है और उंगलियों की खाल में झुर्रियाँ आ जाती हैं। ये झुर्रियाँ आम पानी में चीज़ें पकड़ने या पानी फिसलने से बचाव में मददगार होती हैं।
यानी जैसे टायर में नालियां होती हैं ताकि पानी निकल सके और टायर की गिरफ्त मजबूत हो, इसी तरह उंगलियों की जिल्द में बनने वाली ये लाइनें आपको गीली चीज़ या ज़मीन पर फिसलने से रोकती हैं। यानी ये जिस्म का अपना कुदरती ग्रैब सिस्टम है। सोचें, ये कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि जेनियस डिज़ाइन है कि जहाँ ख़तरा ज़्यादा वहीं जिस्म खुद हिफाजती मूड ऑन कर लेता है। नाज़रीन, माफ़ करना क्यों ज़रूरी है? अक्सर हम दूसरों की गलतियों को दिल पर लगा लेते हैं और उनको माफ़ न करने की वजह से दिल में बोझ रखते हैं, मगर असल नुकसान हमें खुद होता है क्योंकि गुस्सा और कीना हमारे दिल का सुकून छीन लेता है। नाज़रीन, माफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि माफ़ करना दिल को हल्का करता है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपने दिल से एक बोझ उतार देते हैं, मतलब आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। नंबर 2, ज़हनी सेहत के लिए गुस्सा और नफ़रत नुकसानदेह है। साइकोलॉजी कहती है कि दिल में कीना रखने से ज़हनी दबाव और जिस्मानी बीमारियां बढ़ती हैं। नंबर 3, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और माफ़ करो, बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। नंबर 4, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। दूसरों को माफ़ करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं, बल्कि ये कि आप वक्ती तौर पर ख़ुद को सुकून देने के लिए बोझ छोड़ दें। मसलन किसी ने आपकी बात पर तनकीद की, अगर आप उसे दिल में रखते हैं तो आप बार बार परेशान होंगे। अगर आप अपने दिल में कहें, अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने माफ़ किया, तो सुकून खुद ब खुद आ जाता है। माफ़ करना दूसरों पर एहसान नहीं बल्कि अपने दिल पर एहसान और शफ़क़त करना है। नाज़रीन, गंजपन की बीमारी दूर करने के लिए सरसों का तेल 1 किलो, आब बखड़ा 1 किलो, आब प्याज आधा किलो, जौंक 40 ग्राम, अकर करहा 20 ग्राम, रोगन बैसा मुर्ग 200 ग्राम। तरकीब तैयारी: सबसे पहले सरसों का तेल और आब बखड़ा बर्तन में डालकर आग पर पकाएं। जब सिर्फ तेल बच जाए तो इसमें आब प्याज डाल दें। जब आब प्याज जल जाए तो तेल बच जाए तो उतार कर ठंडा होने पर छान लें। फिर इस तेल में जौंक और अकर करहा डालकर फिर आग पर पकाएं। जब सब चीज़ें जल जाएं और सिर्फ तेल बच जाए तो छान कर आखिर में रोगन बैज़ा मुर्ग डालकर बोतल में भर लें और गंजपन की जगह पर लगाएं। इंशाल्लाह 20 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। नहायत ही मुजर्रब तेल है। इमाम मारूफ करखी रहमहुल्लाह से पूछा गया, आपका अपने रब से ऐसा ताल्लुक कैसा बना? उन्होंने कहा, इमाम इब्ने समाक रहमहुल्लाह की नसीहत से। सवाल, कैसे? फरमाया, मैं कुफा जा रहा था, असर की नमाज के बाद एक मस्जिद में गया, वहाँ एक शख्स लोगों को वाज कर रहा था। मैं बैठ गया और सुनने लगा। उसने कहा, जो अल्लाह के साथ कभी कभार ताल्लुक़ बनाए, अल्लाह भी उसके साथ कभी कभार ताल्लुक़ बनाता है, और जो अल्लाह से मुंह मोड़े, अल्लाह उससे मुंह मोड़ लेता है। जो अल्लाह की तरफ मुकम्मल झुके, अल्लाह अपनी रहमत के साथ उसको कबूल कर लेता है। अल्लामा करखी रहमहुल्लाह कहते हैं, यह बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने कहा, बस अब मैं अपने रब की तरफ झुक जाऊंगा ताकि वो मुझे अपनी वसी रहमत से कबूल करे। नाज़रीन, अपने घरों के राज महफूज रखो क्योंकि जो रिश्ते एतमाद और राजदारी पर कायम हो वो कायम रहते हैं, और जिनके पर्दे खोल दिए जाएं वो बिखर जाते हैं।